Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Let's start with the today's topic, that is planning process. Okay. So today we are going to discuss about that what is the process of planning. You know what is planning? Planning is about thinking in advance, what to do, how to do, by whom it is to be done. It is a process of decision making, we can say. It is about forecasting. Yes. So today we are going to learn about that how planning is being done. It is a chronological order. It is done step by step. इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप स्टेप्स को पर्टिकुलरली जिस ऑर्डर में दिए गए हैं उसी में ही आप बोर्ड के एग्जाम्स में लिखोगे, उसी में इसी पर्टिकुलर ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यू आर गोइंग टू राइट दैट in your notebooks as well, you are going to write that in your exams as well. You have to learn in the same manner. So the very first step is setting objectives. So as we know that as soon as the planning function starts, okay, so the very first function, the very first step in the planning process is to set up the objectives, to frame the objectives, because once the objectives are being set up, then the policies, procedures and the methods, all those things are also set up properly. एक बार सबसे पहले objective को set करना होता है. Yes, objectives are goals of the organization. Okay, these are those we can say these are those standards or benchmarks where the organization want to see itself. Okay, after a year we can say, for example, if an organization want to increase the sales by 20%, so this is an objective. Okay, तो सबसे पहला process का step क्या आ जाता है, that to set the objectives. Okay, it can be different, objectives can be different डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट. ओके, देयर डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर कॉमन फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स, फॉर ऑल द एम्प्लॉयज. दे हैव टू अचीव देम. ओके, एंड वंस objectives are framed, then each and every department, each and every employee have to work to achieve that organizational goal. Okay, and once objectives are framed, it should be clearly stated to all the departments, we can say. Okay, next step is developing premises. बच्चों, this step is very important. ये आपका 1 mark case study में mostly आ जाता है. Okay, so developing premises, basically premises मतलब होता है making assumptions. ओके, मेकिंग अजम्पशन. प्लानिंग क्या है, हम अज्यूम ही तो कर रहे हैं, प्रेडिक्शन ही तो कर रहे हैं फ्यूचर को लेकर. यस, तो यहाँ पर क्या होता है, प्लानिंग में भी क्या होता है, फ्यूचर को लेकर जो भी अजम्पशन करता है ऑर्गेनाइजेशन, जो भी प्रेडिक्शन करता है वो की जाती है. यानी ऑब्जेक्टिव एक बार सेट हो गए. ओके, सो वंस वी कैन से, वंस ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग सेट अप, उसके बाद क्या किया जाता है, प्रीमाइसेस सेटअप करे जाते हैं, एजम्पशंस डेवलप करी जाती हैं. ओके, each and every manager has to make certain assumptions, certain predictions about the future, और जब वो ये assumptions बनाता है then that is known as premises. Okay, basically what happens in that, the premises or assumptions, these premises or assumptions, they should be same for all, and there should be total agreement that each and every employee, each and every department is going to follow that assumption, is going to follow that prediction, is going to follow that forecasting. Okay, for example, if we'll say, if a manager want to develop premises, if a manager want to develop assumption, अगर वो कोई assumption लिखता है, लिखना चाहता है, फ्रेम करना चाहता है, तो it means वो क्या कर रहा है, prediction कर रहा है, forecasting कर रहा है. Okay, so we can say that forecasting is very important. It is very important as it is a technique for gathering information. Okay, जब इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है, इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए प्रीमाइसेस बनाना बहुत ज़रूरी है. ओके, basically what happens that the assumption is made on the basis of forecasting, so we can say that forecasting is the technique of gathering information. Or few of the common forecasts are there. For example, to find out the demand of a product, what will be the demand of a product in the market, what will be the change in the competitor policy, what will be the strategy of the competitors, what will be the change in the government policies, what will be the change in the tax rates, we can say. So all these being done in developing premises, all the assumptions are being made in the developing premises. I hope you are getting it. Next is identifying alternative course of action. Okay, after setting up of objectives, what the manager do, manager make a list of alternatives. वो क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं alternatives की. they make a list of various alternatives through which the organization can achieve their objectives, their organizational goals. Okay, and
it is the responsibility of the manager that manager must know the ways, they must know the methods कि वो किस तरह से अपने उन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पर पहुंच सकते हैं. एक बार ऑब्जेक्टिव सेट हो गए, अजम्पशन बना ली, अब मैनेजर क्या करेगा कि उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए मेरे पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना. ओके, अगर इंक्रीज सेल करनी है फॉर एग्जांपल, तो कैसे इंक्रीज सेल हो सकती है? मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, है ना, और टीम हायर करते हैं, जगह जगह पर अपने ऑफिसेज स्टार्ट करते हैं, है ना, डोर टू डोर पब्लिसिटी करते हैं, टेलीविज़न के थ्रू एडवर्टीजमेंट करते हैं. तो आइडेंटिफाई करने होते हैं वेरियस कोर्सेज ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. तो उसके बाद क्या होता है, बेसिकली आइडेंटिफाई करना है वेरियस कोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. इसी तरह से हम और एग्जांपल भी ले सकते हैं कि इसी में ही अगर उसने सेल्स इंक्रीज़ करनी है मैनेजर ने, तो किस तरह से और हो सकता है, डिस्काउंट ऑफर कर दिया, है ना, और मार्केट में अपना शेयर इंक्रीज़ कर दिया. So all these alternatives will be identified, will be write down, note down कि कौन कौन से alternatives हैं. Okay, after that what will happen, these alternative courses will be evaluated. Next step क्या होगा कि जो alternatives की list बनाई है उनको क्या करना, evaluate करना. evaluate करेगा कौन करेगा, manager. The manager will start evaluating each and every alternative. Each and every alternative will be evaluated by the manager. After this, the manager will start eliminating the alternatives which have more of a like negative aspect. वो check out करेगा कि कौन से इसमें नेगेटिव ऑल्टरनेटिव्स है और उन्हें वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देगा. फॉर एग्जांपल, द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इज़ वेरी कॉमन. रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ मतलब कितना रिस्क है और कितना उसमें से रिटर्न आ रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर कॉस्ट ज़्यादा लगा दी गई है किसी पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव पर, अगर हम कहें कि हम टेलीविज़न एडवर्टीजमेंट करते हैं और किसी ब्रांड एम्बेसडर कोई सेलिब्रिटी लिया जाता है, तो इस पर इतनी कॉस्ट लग जाएगी, लेकिन फिर भी ये अज्यूम किया जा रहा है कि इतनी सेल नहीं होगी या फिर रिटर्न इतना ज़्यादा नहीं आएगा, तो वो ऑल्टरनेटिव क्या हो गया, नेगेटिव हो गया. क्यों? क्योंकि उसको किसके थ्रू देखा गया, रिस्क रिटर्न. कितना रिस्क है, कितना रिटर्न है, इसके बीच में ये देखा जा रहा है फिनेंशियली. सो if it is like more risky, okay, if it is more risky and the investment is also more, return is also more, so it will be taken in, उसको evaluate किया जाएगा. if it is like more risky but no return is there, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, eliminate कर दिया जाएगा. okay, so basically here what is having, where here that particular alternative is being selected which is having which is the most feasible assumption, जो सबसे ज़्यादा feasible है. ओके, जिस पर ऐसा फील हो रहा है कि ये ऑल्टरनेटिव फ्यूचर में जाकर बेस्ट रिजल्ट देगा, उस ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करा जाएगा. सिलेक्ट हम बाद में करेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट कर रहे हैं. ओके, एक्यूरेट फोरकास्ट इन कंडीशंस ऑफ सर्टिनिटी और अनसर्टिनिटी देन बिकम वाइटल अजम्पशंस फॉर दीज प्रपोजल्स. फोरकास्टिंग करी जाएगी, ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करा जाएगा फिजिबिलिटी के बेसिस पर, कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पर, एंड आफ्टर दैट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड. द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड. ओके, द बेस्ट ऑल्टरनेटिव विल बी सिलेक्टेड, बट एज वी नो देयर इज नो लाइक समथिंग लाइक फिक्स्ड, और कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसके थ्रू इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं. सो द मैनेजर विल स्टार्ट इवेल्युएटिंग ईच एंड एवरी लाइक ऑल्टरनेटिव, एंड समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने की जगह मैनेजर क्या करे, कुछ ऑल्टरनेटिव्स को मिलाकर सिलेक्ट कर ले और फिर ये डिसाइड करे कि कौन सा ऑल्टरनेटिव फीजिबल है, प्रॉफिटेबल है, और कौन से ऑल्टरनेटिव के लेस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं फ्यूचर में जाकर, और उसको वो क्या करेगा, सिलेक्ट कर लेगा. आफ्टर दैट पर्टिकुलर प्लान विल बी इम्प्लीमेंटेड. द मैनेजर विल प्रिपेयर द मेन प्लान, द सपोर्टिव प्लान ऑन पेपर. ठीक है, उसको बाद उस प्लान को प्रिपेयर करने के बाद आफ्टर दैट पर्टिकुलर प्लान विल बी इम्प्लीमेंटेड. जब वो पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट हो गया, अब टाइम किसका आ गया, उसको एक्चुअली प्लान को इम्प्लीमेंट करने का. फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था सेल इंक्रीज करने के लिए. ओके, नाउ इफ लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ द प्लान इज टू इंक्रीज इन सेल कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट. ये सिलेक्ट हो गया मेथड कि एडवर्टीजमेंट पर एक्सपेंडिचर बढ़ा देना है आपसे, देन दैट पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन विल बी implemented. Managers
will allot more funds to advertisement department, they will select the media, they will hire the advertising agency, and the process will go on. The last process is follow up action. Now when once the plans are being implemented, after that there will be monitoring of the plans कि जैसा सोचा था उसके अकॉर्डिंग प्लान चल रहा है या नहीं चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द एक्सपेंडिचर प्लानिंग इज़ डन कीपिंग इन माइंड, जो एडवर्टीजमेंट पर एक्सपेंडिचर कर रही है कंपनी, वो ये सोचते हुए कर रही थी कि देयर कैन बी अ 5% इन्फ्लेशन रेट, बट एक्चुअली में क्या हुआ, इन्फ्लेशन रेट 10% से बढ़ गया. तो फॉलो अप मैनेजर क्या करेंगे, फटाफट जल्दी से प्लान को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द 10% inflation rate. That's why we can say that follow up action is also necessary कि whatever is being done, whatever is being implemented, plan जो भी implement कर रहा है, क्या वो as it is जैसा सोचा गया था वैसे चल रहा है या नहीं चल रहा है. So this is the process of planning, we can say. So there are 7 steps in the process of planning. The very first step is setting up of objectives. After that, developing premises. Then listing out the various alternatives, selecting the best alternative, evaluation of different alternatives, then selecting the best alternative, and then implementing the plan, and at the last follow up action. Basically planning क्या है, सबसे पहले objective set करे जा रहे हैं, उसके बाद assumption करे जा रहे हैं उन objectives को लेकर. After that we can say that alternative courses of actions are identified, then these alternative courses of action are evaluated, best alternative is selected, then it is implemented, and then follow up action. I hope you've understood this, students. Now students, we are going to study about the types of plans. There are 2 types of plans, single use and standing plan. Each and every organization prepare the plans, and before taking any of the decision, the organization has to take the manager has to prepare a plan. Okay, so there are 2 types of plans, basically single use plan and standing plan. Single use plan means that this plan is being developed for one time event, we can say, or a project. सिर्फ एक बार के लिए ही इस प्लान को बनाया जाता है. ऐसा कहा जाता है, if this plan is being developed, then the manager is not going to use this plan in the future course of action. Okay, basically such a course of action is not likely to be repeated in future. Basically we can say they are non-recurring situation. ऐसी situation बार बार occur नहीं होती हैं. Okay, this plan, the duration of this plan may depend upon the type of project. हो सकता है ये जो जिस प्रोजेक्ट के लिए या जिस इवेंट के लिए प्लानिंग करी गई हो वो एक दिन का हो, एक वीक का हो, इट मे बी ऑफ अ मंथ, अ ईयर. सो जैसे ही ये इवेंट का ड्यूरेशन फिनिश हो जाएगा, इवेंट फिनिश हो जाएगा, वैसे ही उसका ड्यूरेशन भी फिनिश हो जाएगा. एज सुन एज इट इज़ बीइंग लाइक ओवर, फॉर एग्जांपल कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, सेमिनार्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, और जैसे ही वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस फिनिश हो जाती है तो उसके लिए जो भी प्लानिंग की गई होती है उस कॉन्फ्रेंस के लिए, उस सेमिनार के लिए, वो भी फिनिश हो जाती है. ओके, आपके स्कूल में एनुअल फंक्शंस होते हैं, ओके, वेरियस सेलिब्रेशंस होते हैं, तो उन सेलिब्रेशंस को करने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग करता है मैनेजमेंट. ओके, एज सुन एज दैट पर्टिकुलर इवेंट इज फिनिश्ड, वैसी वो प्लानिंग भी फिनिश हो जाती है. सो दैट इज नोन एज सिंगल यूज प्लान, विच इज़ बेसिकली प्रिपेयर्ड फॉर अ सिंगल इवेंट, फॉर वन टाइम इवेंट और अ project, we can say. Okay, and these projects, if we'll talk about, these projects are similar to programs, but there is difference in scope and complexity. ये प्रोग्राम से मिलते जुलते हैं, ये प्लान्स जब बनाए जाते हैं, इट लुक लाइक अ प्रोग्राम, बट एक्चुअली दे आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी. ओके, एंड फॉर दीज प्लान्स ऑल्सो वी कैन से बजट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड. ओके, बजट प्रिपेयर किया जाता है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग डन for doing that particular plan, for implementing that particular plan. Okay, next is standing plan. Standing plan is basically, it is used for activities which occur regularly over a period of time. ये एक बार बना दिया जाता है, और अगर उसकी ऐसी सिचुएशन बार बार अकर होती है तो वही स्टैंडिंग प्लान, रेडीमेड प्लान यूज़ कर लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में. ओके, in simple terms we can say that standing plans are those plans which are once made, they can be used for many years. Okay, these standing plans includes policies, procedures, methods, rules, etc. Okay, so let's discuss different types of plans. The very first plan is objective. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्लानिंग क्या है, सॉरी, ऑब्जेक्टिव. तो हम ऑब्जेक्टिव के लिए क्या बोलते हैं, दैट ऑब्जेक्टिव्स शुड बी स्मार्ट. क्या होने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स?
स्मार्ट होने चाहिए। कैसे कह सकते हैं स्मार्ट होने चाहिए? दे शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। ऑब्जेक्टिव्स की क्वालिटी हैं ये। फॉर एग्जाम्पल, if an organization want to increase sale by 10% by 6 months, or we can say if an organization want to decrease in rejections by 2% by 1 month, तो ये सब क्या है? ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली? ऑब्जेक्टिव इज समथिंग इन विच ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड व्हाट इज टू बी डन, क्या करने वाला है ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सेट टू बी द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन, कि फ्यूचर में क्या चाहता है एक ऑर्गेनाइजेशन, वही ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव सिंपली स्टेटेड इज व्हाट यू वुड लाइक टू अचीव और व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव, दैट इज द एंड रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज़ का एंड रिजल्ट। अगर वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहा है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स वो क्या है? उस ऑर्गेनाइजेशन का एंड रिजल्ट है। अगर इंक्रीज करनी है सेल बाय 20%, इट मीन्स पूरे साल जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उसका एंड क्या निकलेगा? 10% इंक्रीज इन एक्टिविटीज़, सॉरी 10% इंक्रीज इन सेल। सो दैट इज एंड रिजल्ट इन एक्टिविटीज़। ओके, दे आर यूजुअली सेट बाय टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फोकस ऑन ब्रॉड जनरल इश्यूज। ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव्स ब्रॉड पर्पस के लिए जनरल इश्यूज पर बनाए जाते हैं। ओके, दे सर्व एज अ गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन में हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स। हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के भी अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, एंड देयर कैन बी कॉमन गोल्स एज वेल। ऑफ कोर्स कॉमन गोल्स तो होने ही होने, बट देयर कैन बी डिफरेंट डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स एज वेल। नाउ दीज ऑब्जेक्टिव्स should be measurable in quantitative terms, they should be clearly stated, they should be in written. Okay, so these are objectives basically. Next type of plan is strategy. Now what is a strategy? It is a comprehensive plan to achieve the organizational objectives. स्ट्रैटेजी क्या है? जो ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया जाता है। जब ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया जाता है तो उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है, ओके उसको अचीव कैसे करना है, उसकी प्लानिंग जब की जाती है, देन दैट इज़ नोन एज स्ट्रैटेजी। फॉर एग्जांपल, एडवर्टीजमेंट करना है तो कौन सा एडवर्टीजमेंट करना है, किस मेथड से सेल्स को प्रमोट किया जाएगा, ये हुई स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी इज़ ऑल्सो द टास्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, वी कैन से। ये भी किसका काम है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। जब कभी भी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की जाती है तो बिजनेस एनवायरनमेंट को देखकर करी जाती है। ओके, ये देखा जाता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है आसपास। वी कैन से स्ट्रैटेजी इज़ लाइक अ ब्लूप्रिंट ऑफ द बिजनेस। ओके, इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल इज गिवन है दैट व्हाट इज़ द प्राइसिंग पॉलिसी, किस मैथड के थ्रू प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा प्रोडक्ट का, दैट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी। सो बेसिकली स्ट्रैटेजी हम क्या कह सकते हैं? स्ट्रैटेजी इज़ बेसिकली समथिंग बाय विच objectives of the organization are achieved. Next is policy. What do you mean by policy? Policies are general statements. This is the key term. ये general statements होते हैं। ये जनरल स्टेटमेंट होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन का जो तरीका है, मेथड है, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। ओके, प्रमोशन कैन बी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि हम तो सीनियरिटी के बेसिस पर ही क्या करते हैं? प्रमोशन करते हैं। तो पॉलिसीज़ आर जनरल स्टेटमेंट्स। ओके, रेड रोज कॉन्वेंट स्कूल में डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। यहाँ की पॉलिसी है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स विल नॉट सिट टुगेदर, बॉयज़ एंड गर्ल्स विल हैव लंच इन देयर डिफरेंट फील्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू, सो दैट इज इट, दिस इज द पॉलिसी। ओके, so policies are basically general statements, we can say. They are guides to managerial action. They act as a guideline कि मैनेजर जब कोई भी डिसीजन लेगा तो वो किस बेसिस पर लेगा? अपने ऑर्गेनाइजेशन की कुछ पॉलिसीज़ के बेसिस पर लेगा। ओके, नाउ दिस पॉलिसीज़ कैन बी माइनर एज वेल एज कैन बी मेजर। अगर मेजर कंपनी, फॉर एग्जांपल, मेजर कंपनी पॉलिसीज़ टू माइनर कंपनी पॉलिसीज़ हो सकती हैं। मेजर कंपनी पॉलिसीज़ आर फॉर ऑल टू नो। जो कंपनी की पॉलिसी मेजर कैटेगरी में आती है वो ज़रूरी है कि हर एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के पता होना चाहिए। इट मस्ट बी नोन टू द कस्टमर्स, क्लाइंट्स, कॉम्पिटिटर्स एज वेल। और जो माइनर पॉलिसीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्हें पता होनी ज़रूरी है। दीज आर लाइक, वी कैन से, दीज आर ब्रॉड पैरामीटर्स। ओके,
हर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी डिफरेंट होती है. सो पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट्स दैट एक्ट एज अ गाइड ऑफ थिंकिंग और चैनलाइजिंग. नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान इज प्रोसीजर. Now what are procedures? Basically these are routine steps on how to carry out activities. ये क्या है? रूटीन स्टेप्स हैं कि किस तरह से एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को करा जाएगा. एग्जैक्ट मैनर. ओके, दिस इज ऑल्सो अ की वर्ड, एग्जैक्ट मैनर. ओके, कि किस तरह से किसी काम को करा जाएगा. दे आर स्पेसिफाइड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. अगर आपको बोला जाए एक फाइल प्रिपेयर करनी है या फिर एक एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको उसका पर्टिकुलर प्रोसीजर लिखना होता है ना एक्सपेरिमेंट का, स्टेप बाय स्टेप, दैट यू हैव टू डू दिस, आफ्टर दैट दिस, आफ्टर दैट दिस. सो दिस इज अ प्रोसीजर. ओके, इट शुड बी डन इन अ एग्जैक्ट मैनर. दे आर स्पेसिफाइड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ओके, सो procedures are basically routine steps on how to carry out the activities. Policies and procedure are interlinked with each other. Procedures are steps to be carried out within a broad policy framework. एक पॉलिसी बना दी गई है, उस पॉलिसी को कैरी आउट करने के लिए प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है. तो वी कैन से दैट पॉलिसी इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, वाइडर कंसेप्ट, एंड प्रोसीजर इज अ नैरोअर कंसेप्ट. प्रोसीजर जो है वो पॉलिसी में इंक्लूडेड होता है. एक पॉलिसी बना दी गई है, उसके बाद उसको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप करना है, दैट इज प्रोसीजर. नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान इज मैथड. ओके, Method are the prescribed ways or manner in which a task has to be performed. ये एक तरह से prescribed ways होते हैं कि किस तरह से काम को करना है ताकि ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके. ओके, इसमें क्या होता है बेसिकली एक टास्क होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल देयर इज लाइक वर्क दैट इज़ बीइंग डन इन द ऑर्गेनाइजेशन रिपीटेटिवली, और रूटीन में एक काम किया जाता है. तो उस रूटीन में जो काम करा जा रहा है उस काम को कैसे करना है, रूटीन में जो करा जा रहा है और रिपीटेटिव करा जा रहा है, दैट इज़ नोन एज मैथड. सो वी कैन से मैथड is a formalized way or systematic way of doing routine or repetitive jobs, we can say. Okay, now for example, if like doing a particular job, if there is a doubt in the mind of employee, then those employees must be told that what is the method of doing a particular work. अगर confusion है तो इस काम को कैसे करना है, तो काम को कैसे करना है is a method. Okay, for example, for valuation of depreciation, it is being decided in the organization that whether to use a straight line method or diminishing balance method. तो अगर straight line method यूज़ करना है तो वो क्या हुआ, पॉलिसी हो गई उस ऑर्गेनाइजेशन की. हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड ही यूज़ किया जाता है, लेकिन उस स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड को कैलकुलेट करा कैसे जाता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे करा जाता है, दैट इज़ प्रोसीजर. और वो क्या है, स्ट्रेट लाइन वैल्यू इज़ अ मैथड. वो क्या है, एक मैथड है, प्रिस्क्राइब्ड वे है कि काम को कैसे करना है. ओके, द कॉमन वे ऑफ डूइंग अ जॉब. ओके, इफ देयर इज कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ द एम्प्लॉयज़, तो उस काम को कैसे करना है, दैट इज़ नोन एज मैथड. नेक्स्ट इज रूल. ये तो आप सबको पता ही होंगे ऑफ कोर्स. Rules are specific statements. This is again a keyword for case study. Specific statement that to inform what is to be done. Specific, ये ही रूल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का. ओके, it reflects a managerial decision that a certain action must or must not be taken. इस ऑर्गेनाइजेशन में ये एक्शन हो सकता है, ये एक्शन तो बिल्कुल नहीं लिया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल, you cannot keep the females. For example, females in any of the organization cannot be in the organization after 5 o'clock. So this is the rule of the organization. Okay, so they are usually the simplest type of plan because इसमें कोई compromise नहीं होता, इसमें कोई changes नहीं हो सकते. एक बार decision ले लिया तो ले लिया. Next is program. Programs क्या होते हैं? They are detailed statements about a project which outlines the objectives, policies, procedures, rules, tasks, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, बजट टू इम्प्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन. जब ये सारी बातें लेकर एक सेट बना दिया जाता है, देन दैट इज़ नोन एज प्रोग्राम. इट मीन्स ये सारी चीज़ें, एंटायर ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग इंक्लूडेड in any of a particular segment, then that is known as program. Okay,
द माइन्यूटियस्ट डिटेल्स आर वर्कड आउट. जब प्रोग्राम बनाया जाता है तो उसमें ये रखा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल स्कूल में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, तो सेलिब्रेशन हो रहा है, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव. उसके लिए कौन सी पॉलिसीज़ होंगी, प्रोसीजर्स क्या रहेंगे, रूल्स क्या रहेंगे, कौन सी ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट है, कितनी फिजिकल रिसोर्स रिक्वायरमेंट है, बजट क्या होगा. ऑल दीज डिसीजंस आर बीइंग टेकन, ईच एंड एवरी माइन्यूटियस्ट डिटेल को भी उसमें काम करा जाएगा उस पर. देन दैट इज़ अ प्रोग्राम. ओके. बजट इज़ बेसिकली अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम. घर पर भी हम लोग बचाते हैं, हाउस होल्ड बजट बनाते हैं. फैमिली का बजट होता है. फैमिली बजट क्या होता है, दैट कि कितनी इनकम है फैमिली की और कितना उसने एक्सपेंडिचर करना है, दैट इज़ अ बजट. बजट इज़ बेसिकली एन एस्टिमेशन रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर एंड इनकम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर वी कैन से. तो ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो प्रिपेयर्स अ बजट वी कैन से. ओके. Budgets are also prepared by each and every manager at every level. Okay, so it is an estimation, we can say it is a financial tool through which it is estimated that what will be the income of the organization and what will be the expenditure of the organization. It can be prepared by the each and every level of manager. I hope you understood this. Thank you students, have a nice day.